Okay, today we'll start with nomenclature of aldehyde. Nomenclature means what? The naming system of the aldehyde. Aldehyde has a common name as well as the IUPAC. The very common point here, the common name of aldehyde, common names of aldehydes are obtained. Common name of aldehyde are obtained from corresponding common names of aldehyde are obtained from corresponding carboxylic acid. The common names of aldehyde are obtained from the corresponding carboxylic acid. Now, how we'll see. So, what I'll do here, first I'll write down the name of the carboxylic acid structure. Suppose normally we say here, if I have a table, or I can write here. Normally we know that HCOOH. This is carboxylic acid, correct? Carboxylic acid. And name of the acid is formic acid. Okay, formic acid. Now from this acid, normally we HCOOH and we have here aldehyde. Normally we have here formic acid. So formic acid, we can just write here what? HCHO. Now what we have to do here, IC acid should be replaced by what? Aldehyde. So here your name becomes what? FORM, form, and IC acid is replaced by what? Aldehyde. So your common name is formaldehyde. Common name is formaldehyde. Okay. So how do we get the common name of the aldehyde? From carboxylic acid, the IC acid is replaced. The IC acid is replaced by so from here formic acid, IC acid is replaced by what? Aldehyde. So formaldehyde, correct? Then I'll take the next example. Suppose we have here CH3COOH, which is called as acetic acid. CH3COOH is called as acetic acid, and from that I get here CH3CHO. Again here IC acid. So what do we get here? ACET, and IC acid is replaced by what? Aldehyde. So your IUPAC name is acetaldehyde. So CH3CHO is called as acetaldehyde. Then CH3, CH2, COOH, correct? 3 carbon atoms, so it is called as a propionic acid. It is called as a propionic acid. Again here CH3, CH2, and then this can be written as what? CHO, aldehyde. But when you write down the name here again, propion, propion, and IC acid is replaced by what? Aldehyde. Propion aldehyde, correct? Propion aldehyde. So what you've seen here, if I want to write down the name of the aldehyde, then from the corresponding acid, IC acid should be replaced by which word? Aldehyde, correct? I'll take some more example now. First we'll finish with all common name,
and then we'll go for the IUPAC. The next structure I'll have here, that is CH3, CH2, CH2, COOH. This is called as N butyric acid. N butyric acid. So here we'll have what? CH3, CH2, CH2, and this COOH normally changed to what? CHO, and so this is called as a butyr, is common BEYR, and IC acid will be changed to what? Aldehyde. So this is called as butyryl aldehyde. It is called as a butyryl aldehyde. Next, तो भी चलेगा, correct? Then CH3CH, CH3, COOH. See here, 1, 2, 3, 4 carbon atom. 1, 2, 3, 4 carbon atom. So this is also butyric, but this can be called as isobutyric acid. It is called as what? Isobutyric acid. So based on this, what structure we'll have here? CH3, CH, CH3, and this group will be aldehyde. So this name can be written as what? IsoButyr, and IC acid will be replaced by what? Isobutyryl aldehyde. Isobutyryl aldehyde, correct? Now here the same compound can be also called as, यहाँ पे हमारे functional group है. Functional group के बाद वाला कार्बन आइटम को क्या बोलोगे आप? अल्फा. Functional group वाले कार्बन को क्या बोलोगे? अल्फा. So this can be called as alpha methyl. See, functional group वाला कार्बन आइटम अल्फा. So अल्फा पे कौन सा ग्रुप आ रहा है? मिथाइल. Alpha methyl. Then how many carbon atom I got over here? 1, 2, 3. And 1, 2, 3 carbon atom is which acid? Propionic acid. So this is called as, this compound is also called as alpha methyl propionic acid. It is also called as what? Alpha methyl propionic acid. So similarly, यहाँ पे अगर ये हमारा functional group है, ओके, ये फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा कार्बन आइटम रहेगा? अगर ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है तो रहेगा अल्फा. अल्फा पे क्या आ रहा है? मिथाइल. सो दिस कैन बी कॉल्ड एज अल्फा मिथाइल. देन हाउ मेनी कार्बन आइटम? 1, 2, 3. 1, 3 कार्बन आइटम इज व्हाट? प्रोपिऑन. ओके, प्रोपिऑन on IC acid will be replaced by what? Aldehyde. So the name becomes what? Alpha methyl propion aldehyde. Alpha methyl propion aldehyde. Okay, next, CH2 double bond CH, single bond COOH. This is called as acrylic acid. This is called as acrylic acid. So what are we here? CH2 double bond CH, single bond COOH. I'll write as what? CHO. So common name will become what? ACRY, and IC acid will be replaced by what? Aldehyde. So your name becomes what? Acryl aldehyde. Acryl aldehyde. Acryl aldehyde, or very commonly it is also called as acrolein. Very commonly, और मतलब ये नाम अगर नहीं लिखो तो भी चलेगा, डायरेक्ट लिखना है what? That this is a common name, acrylic acid, लेकिन इससे क्या बनेगा? acrolein बनेगा. Okay, I'll just do some more common name and then we go for the IUPAC. Okay, and just take one more here. COOH. COOH. This is called as oxalic acid. This is called as oxalic acid. यहाँ पे क्या बनेगा फिर? COOH can be written as what?
CHO dash COOH can be written as what? CHO, correct? And then this will become what? Oxa, and then IC acid will be replaced by what? Aldehyde. IC acid can be replaced by aldehyde. So here oxa, correct? Oxalic acid, correct? So this will become what? Oxa, but Al is already there. So this can be called as what? Oxaldehyde. So what we have seen here, if I want to obtain the aldehyde, then aldehyde can be obtained from the corresponding carboxylic acid by replacing IC acid by which group? Which name? Aldehyde. Which aldehyde we have got? Formaldehyde, HCHO. CH3CHO is acetaldehyde. 3 carbon atom with CHO is called as propionaldehyde. 4 carbon atom with CHO is called as butyrylaldehyde. This is isobutyrylaldehyde, and this is new compound acrolein, and this is also new called as oxaldehyde. So this we got aliphatic aldehyde. Now we'll write down the IUPAC. Okay, we'll write down there IUPAC. So aldehyde, we're going to go for their IUPAC name. Now when we write down their IUPAC name, IUPAC name, see here we have to see how many carbon atom? 1 carbon atom. वैसे लिखना है alkane. E should be replaced by Al from because of aldehyde group. Since we are having the aldehyde group, E should be replaced by Al. So यहाँ see how many carbon atom we are having here? 1. 1 carbon atom, so it is called as a methane. Methane, but because of aldehyde, the E should be replaced by what? Al. So name becomes what? Methanol. Yeah, you can call it as a methanol or methanol. Next structure, aldehyde group. And always remember that, always in all the example, aldehyde group will be on the terminal carbon atom. Terminal means what? Ending carbon atom. Aldehyde group is always on the terminal. देखो यहाँ पे first carbon, यहाँ पे भी end भी है. How many carbon atom are there? 1 and 2. 2 carbon atom is alkane, can be called as the ethane. But because of aldehyde group, E should be replaced by Al. So name becomes what? Ethanol. It is ethanol. Okay, or ethanol. Next structure here. How many? See, aldehyde always at the end of the chain. Aldehyde हमेशा end में ही मिलेगा. How many carbon atom? 1, 2, 3. 3 carbon atom is which alkane? Propane. But because of aldehyde, E should be replaced by what? Al. So name becomes what? Propanol. Name becomes propanol. Okay. Next. now 4 कार्बन आइटम देखो यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन आइटम है और यहाँ पे भी 1 2 3 4 का ब्रांचिंग है स्टार्टेड. तो अभी नंबरिंग करना पड़ेगा. सो दिस विल बी नंबर 1. ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है. जहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप रहेगा उस कार्बन को फर्स्ट नंबर देना है. तो अल्डिहाइड को नंबर देखो यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप है लेकिन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन आइटम है इसलिए ये नंबर 1 आएगा. इन ऑल द प्रीवियस एग्जांपल we have given numbering next to the functional group. लेकिन यहाँ पे functional group में कार्बन इंक्लूड है इसलिए कार्बन को नंबरिंग देना है. तो 1 2 3 and 4. 4 carbon atom in the chain. 4 carbon atom in the chain can be called as what? Butane. Butane. And aldehyde group is on which carbon atom? Aldehyde group is on which carbon atom first? तो 1 लिखोगे तो भी चलेगा, 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. तो E will be replaced by A, butanol. Or normally in our syllabus, aldehyde group is always present on the first carbon atom. Means in all the example, aldehyde group is going to be on the first carbon atom. तो aldehyde का नंबरिंग 1 अगर लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. Next, see here, this is the longest chain. aldehyde यहाँ पे तो ये नंबर बनेगा 1, ये नंबर बनेगा 2 और ये नंबर बनेगा 3. 1 2 3. 2 पे क्या आ रहा है? मिथाइल आ रहा है. तो I'll just write down your name as what? 2. Methyl. 2 methyl. How many carbon atom are there in the chain? 1 2 3.
3 carbon atom in the chain means what? Propane. So here I'll write propane. Propane. And because of aldehyde, last E should be replaced by what? Al. Number one लिखने की जरूरत नहीं है, because in all our example aldehyde will be present only on the first carbon atom. So I'll just write down Al. लेकिन लिखोगे तो भी सही है. Next, here CHO is here, so this carbon atom will be 1, this carbon atom will be 2, and this carbon atom will be 3. How many carbon atom in the chain? 1, 2, 3. 3 carbon atom. 3 carbon atom is called as a prop. लेकिन यहाँ पे 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखोगे? 2 En, 2 En. ओके, तो यहाँ पे 1, 2, 3 कार्बन एटम है. 3 कार्बन एटम कैन बी कॉल्ड एज अ प्रोप. डबल बॉन्ड बिटवीन सेकंड एंड थर्ड कार्बन एटम. सेकंड एंड थर्ड तो मतलब 2 ENE, 2 ENE. correct. And because of the aldehyde group, E should be replaced by Al. So 2 ENL. यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है. And next, here CHO दो कार्बन, दोनों aldehyde group है, तो ये नंबर रहेगा 1 और ये नंबर रहेगा 2. 1 and 2. So this can be called as ethane. But यहाँ पे E को रखना है. क्यों E को रखना है? aldehyde है, aldehyde के लिए क्या लिखते हैं? E should be replaced by what? Al. aldehyde है, E should be replaced by Al. तो how many Al? Di-Al. तो यहाँ पे E आएगा, E, and then will becomes what? The name will be ethene diol. तो नॉर्मली हम लोग E क्यों रिप्लेस करते हैं? बिकॉज E और A साथ में नहीं आ सकता है. करेक्ट. यहाँ पे मतलब मीथेन था, मीथेन, METHANE, बट E के बाद इमीडिएटली A नहीं आ सकता, इसलिए E should be replaced by what? A. In all these example, E is replaced by what? Al. लेकिन यहाँ पे लास्ट एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंप्लीट इथेन मतलब E लिखा हुआ है, कंप्लीट इथेन का E लिखा हुआ है, क्योंकि E और A के बीच में क्या आ रहा है? डाई. E और A के बीच में क्या आ रहा है? डाई. So name can be called as what? Complete ethane. Ethane क्यों? Because दो कार्बन एटम है इसीलिए eth. दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसीलिए ANE. अल्डिहाइड दो है इसलिए डाई, और अल्डिहाइड के लिए क्या लिखोगे आप? A. तो ये हमारे एलिफेटिक अल्डिहाइड के नेम्स हो गए. नाउ विल गो फॉर द एरोमेटिक वन. ओके. Okay, next example I will have it over here as this is a carboxylic acid. This is called as a benzoic acid. ये हमारा benzoic acid है. Okay, so the next line, benzene ring, and then here we'll have what? CHO, COH. So this is IC acid. यहाँ पे क्या आएगा? BENZ, ben, and IC acid will replaced by what? Aldehyde. So name becomes what? Benzaldehyde. The name can be called as benzaldehyde. Okay, benzaldehyde. So in the first column I have written the name of carboxylic acid. Second column I have written the name of aldehyde. But which aldehyde now? Aromatic aldehyde. Okay, this. Then next example I will take here. COOH and CH3. Normally here, if we have only COOH, then this group is called as what? अगर only COH रहेगा तो toluene.
ओनली COH रहेगा तो ओनली CH, अगर ये CH3 नहीं रहेगा then this group is called as toluene. Correct? Toluene has become toluic acid. So this is called as orthotoluic acid. Orthotoluic acid. अगर मैं सेम स्ट्रक्चर अगर यहाँ पे लिखूंगा तो क्या आएगा, देखो बेंजीन रिंग COA will be written what CHO, and this is what CH3. Now here when I write the name ortho, and it will be tol IC acid will be replaced by what? Aldehyde. Next, COOH and OH. This is called as a salicylic acid. तो सेम स्ट्रक्चर बेंजीन रिंग, यहाँ पे क्या आएगा COOH की जगह क्या लिखोगे आप CHO, और ये OH रहेगा, एंड देन दिस इज कंपाउंड इज कॉल्ड एज सैलिसिल SCY सैलिसाइक्लिक. तो यहाँ पे क्या आएगा देखो SALI CYL, and then IC acid will be replaced by what? Aldehyde. Okay, so what is salicylic acid spelling? SALICYCLIC. करेक्ट. और यहाँ पे क्या आ रहा है SALICYL, और यहाँ पे अल्डिहाइड. नेक्स्ट, COOH. This is called as phthalic acid. This is called as a phthalic acid. phthalic. इससे क्या बनेगा देखो रिंग COOH will change to what? CHO. COOH will change to what? CHO, and then this can be called as P silent. So this will become what? THAL, THAL, and IC acid will be replaced by what? Aldehyde, phthalaldehyde. This is called as a phthalic acid, and this is called as a phthalaldehyde. Okay. Next, COOH. This is called as a cyclohexyl carboxylic acid. Why cyclo? Because ये बेंजीन रिंग नहीं है, 6 कार्बन आइटम है तो, और रिंग फॉर्म है तो साइक्लो 6 कार्बन आइटम तो हेक्साइल, और यहाँ पे COOH ग्रुप है तो क्या बोलोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड. साइक्लोहेक्साइल कार्बोक्सिलिक एसिड. और सेम स्ट्रक्चर आप लिख सकते हो COOH के लिए जाएगा CHO. So this can be called as cyclohexane. Cyclohexane. Cyclohexyl has become hexane, and carboxylic acid has become aldehyde. So these are the aromatic aldehydes. So here we have seen the names of aromatics. See here, benzoic acid gives you benzaldehyde. Orthotoluic acid gives you what? Orthotoluidaldehyde. Salicylic acid gives you what? Salicylaldehyde. Phthalic acid gives you what? Phthalaldehyde. And
साइक्लोहेक्साइल कार्बोक्सिलिक एसिड गिव्स यू व्हाट, साइक्लोहेक्सेन अल्डिहाइड। ये हमारे अल्डिहाइड के कॉमन नेम हो गए। नाउ विल गो फॉर देयर IUPAC names. So here we'll have the next column, IUPAC. Now how do we write the IUPAC name here? The first one, the common name benzaldehyde is also accepted as IUPAC name. Common name benzaldehyde is also accepted as the IUPAC name benzaldehyde or benzene ring attached to CHO. अगर हमारे पास रिंग रहेगा तो रिंग के लिए मतलब बेंजीन रिंग अटैच टू CHO, और अगर हमारे कंपाउंड में रिंग रहेगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हो बेंजीन, बेंजीन एंड देन बेंजीन बट एंड रिंग CHO है, CHO अटैच टू रिंग रहेगा तो क्या लिखना है, कार्बाल्डिहाइड. If we have a CHO attached to a ring, then it can be also called as what, कार्बाल्डिहाइड. तो ये हमारा बेंजीन अटैच टू CHO, तो उसे क्या बोलोगे, बेंजीन कार्बाल्डिहाइड. कार्बाल्डिहाइड कभी यूज करना है कि अगर हमारा अल्डिहाइड रिंग को अगर अटैच कर रहा होगा तो उससे यूज करना है कार्बाल्डिहाइड. तो उसमें पहले रिंग का नाम लिखो, हमारा रिंग कौन सा है, बेंजीन. रिंग को CHO अटैच करेगा इसलिए बेंजीन कार्बाल्डिहाइड. ओके, ऐसा लिख सकते हो. बट नॉर्मली वी प्रिफर विच नेम, benzaldehyde. Okay, the common name is also accepted IUP. अभी यहाँ पे देखो CHO and CH3 दोनों ग्रुप है, CHO and CH दोनों ग्रुप है, तो अल्डिहाइड और मिथाइल में नंबर 1 अल्डिहाइड को चला जाएगा और नंबर 2 मिथाइल को चला जाएगा. तो नाम क्या आएगा, देखो यहाँ पे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल. ओके, 2 पे मिथाइल आ गया और मिथाइल रिमूव करने के बाद क्या बचेगा, बेंजाल्डेहाइड बचेगा. सो 2 मिथाइल and this benzene with CHO. Benzene with CHO can be called as benzaldehyde. Common name, benzene with CHO can be called as benzaldehyde. So I can write down 2 methyl, 2 methyl, and then here I will have benzal. Normally हम लोग benzaldehyde यूज करते हैं, बहुत रेयरली कार्बाल्डिहाइड यूज करेंगे. नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखो यहाँ पे CHO और OH. CHO और OH में ये हमारा मेन ग्रुप है तो उसको नंबर 1 चला जाएगा, इसको नंबर 2 चला जाएगा. अल्डिहाइड और हाइड्रोक्सिल में किसे प्रायोरिटी देना, अल्डिहाइड को देना है, तो ये नंबर 2 आएगा. 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, करेक्ट, 2 हाइड्रोक्सी. और देन OH रिमूव करना, कौन सा ग्रुप बचा, अल्डिहाइड ग्रुप बचा, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड. नेक्स्ट, द नेक्स्ट स्ट्रक्चर वी आर हैविंग, ये भी अल्डिहाइड ग्रुप है, ये भी अल्डिहाइड ग्रुप है. तो अगर ये नंबर 1 रहेगा तो ये नंबर 2 रहेगा. एंड बोथ आर अटैच्ड टू बेंजीन रिंग, both are attached to benzene ring. So name is written as what, benzene 1,2, benzene 1,2. और अल्डिहाइड अगर रिंग को अटैच कर रहा हो तो डायरेक्टली हम क्या यूज कर सकते हैं, डाई. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डाई कार्बाल्डिहाइड, इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, डाई कार्बाल्डिहाइड, HYD. इट इज कॉल्ड एज अ बेंजीन 1,2. मतलब बेंजीन रिंग को CHO अटैच एट विच पोजीशन 1 and 2. तो बेंजीन 1,2, 2 अल्डिहाइड इसलिए डाई. और अगर बेंजीन रिंग के लिए अल्डिहाइड ग्रुप अटैच डायरेक्ट क्या यूज कर सकते हो, कार्बाल्डिहाइड भी यूज कर सकते हो, कार्बाल्डिहाइड. ओके, एंड नेक्स्ट लास्ट यहाँ पे क्या लिखोगे, साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लिक रिंग है, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइक्लोहेक्सेन. और हमारा अल्डिहाइड अगर रिंग को अटैच है, अल्डिहाइड अगर रिंग को अटैच है उसके लिए क्या यूज करोगे, कार्बाल्डिहाइड. ओके, तो ये हमारे नोमेनक्लेचर. तो बेसिकली हमारे लिए ये कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंजाल्डिहाइड. देन उसके बाद हम लोगों ने सैलिसिल अल्डिहाइड के बारे में स्टडी किया है, बहुत बार हमने प्रिपेयर भी किया है, अलग अलग रिएक्शन में प्रिपरेशन भी बताया. सैलिसिल अल्डिहाइड का भी प्रिपरेशन किया हुआ है और सैलिसाइक्लिक एसिड का भी प्रिपरेशन किया हुआ है, करेक्ट. तो बेसिकली हमें एक कॉमन अल्डिहाइड जिसका बहुत आगे जरूरत लगेगा अगर प्रिपेयर करना रहेगा तो बेंजाल्डिहाइड, benzene ring attached to CHO, and common name is also accepted as a IUPAC name. Okay,
So with this, we have finished with the nomenclature of aldehyde. Now I'll just take some common example of aldehyde, common example. Or I will go for nomenclature of ketone. Yes, the next heading I'm having here is nomenclature of ketones. Okay, nomenclature of ketones. What is the nomenclature of the ketones here? See first. I'll take the example. Structure, I'll write in the first column. I will have here structure. Then we'll have the common name. And in the last column, we'll have here IUPAC name. First structure, I'll write CH3, CO. But I'll write C this way, C double bond O, CH3. आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3, CO, CH3. You may write like this or you may write like this. Both the way it is correct. So this is ketonic group structure. Common name. Now this common name of this ketone is very commonly, it is known by a name called as acetone. Okay, और यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, तो it can be also called as dimethyl ketone. It is also called as a dimethyl ketone. First, I'll finish with all common name and then I'll go for the IUPAC name. Second structure, I'll write here CH3, C double bond O, CH2, CH3. CH3, C double bond O, CH2, CH3. Now here in this structure, this group is methyl and this group is ethyl. ये ketone group है हमारा, ketone. So same structure कैसे लिख सकते हो आप? CH3, CO, CH2, CH3. You either write like this or you write like this. But ये group हमारा methyl है और ये group ethyl, तो पहले क्या लिखोगे आप यहाँ पे? ethyl, methyl, ketone. Ethyl, because alphabetically E come before M. So name can be written as what? Ethyl methyl ketone. Next structure, CH3, CH2, C, double bond O, CH2, CH3. ऐसे भी लिख सकते हो, और CH3, CH2, CO, CH2, CH3 ऐसे भी लिख सकते हो. करेक्ट. ईथर और इसमें कंफ्यूज नहीं होना. ईथर में दोनों अल्काइल ग्रुप में क्या होता है? O होता है, और यहाँ पे दोनों के बीच में क्या आ रहा है? CO आ रहा है. ईथर में दोनों अल्काइल ग्रुप के बीच में क्या होगा? O होगा, और यहाँ पे दोनों अल्काइल ग्रुप के बीच में क्या आ रहा है? CO आ रहा है. तो ये कीटोन है. ये भी इथाइल ग्रुप है, ये भी इथाइल ग्रुप है, तो क्या लिखोगे? डाई इथाइल एंड देन कीटोन, डाई इथाइल कीटोन. ओके, नेक्स्ट. ये हमारे कॉमन नेम्स हो गए. ओके, देन आई जस्ट टेक नाउ सम मोर लिटिल कॉम्प्लिकेटेड. और अगर मुझे इनका पहले इनका IUPAC नेम लिखते हैं हम लोग. IUPAC नेम इनका लिखेंगे. अभी IUPAC नेम के लिए रूल क्या है कि हमारे पास जो अल्केन रहेगा, अल्केन, E should be replaced by ONE. मतलब E की जगह हमें, अगर हमारे फंक्शनल ग्रुप कीटोन रहेगा, अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कीटोन रहेगा, तो हमें क्या करना है? E ऑफ द अल्केन शुड बी रिप्लेस्ड बाय व्हाट? ONE. क्यों? कि E और O साथ में नहीं आ सकते. E और O अगर साथ में नहीं आते, E शुड बी रिप्लेस्ड बाय व्हाट? ONE. तो अब यहाँ पे देखो, हाउ मेनी कार्बन एटम? 1 2 3. 1 2 3, 3 कार्बन एटम. So 3 carbon atom, मतलब it can be called as a propane.
और प्रोपेन, प्रोपेन एंड देन प्रोपेन कीटोनिक ग्रुप है तो ई शुड बी रिप्लेस बाय व्हाट, ONE, प्रोपेन, ऐसे भी लिख सकते हो। और यू मे राइट डाउन एज अ प्रोपेन और सेकंड कार्बन पे कीटोनिक ग्रुप आ रहा है तो यू कैन राइट व्हाट 2ONE। लेकिन नॉर्मली यहाँ पे हम लोग 2 नहीं लिखते, क्यों नहीं 2 लिखते? बिकॉज अगर मैं यहाँ से काउंट करूंगा तो ये सेकंड कार्बन एटम है, लेकिन लेफ्ट साइड से काउंट करूंगा तो भी सेकंड कार्बन एटम ही है। तो कहाँ से भी काउंट करो ये सेकंड कार्बन एटम पे ही आ रहा है, इसीलिए नंबर 2 लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखो हाउ मेनी कार्बन एटम आर देयर, 1 2 3, 3 carbon atom are called as a propane, E, but because of ketonic group E should be replaced by what, ONE। लेकिन अगर आपको नंबर लिखना है तो ONE ketonic group is on which carbon atom, second carbon atom। ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो, यहाँ से अभी यहाँ से नंबरिंग करूंगा तो केटोनिक ग्रुप कहाँ पे आ रहा है, सेकंड पे आ रहा है। यहाँ से नंबरिंग करूंगा तो केटोनिक ग्रुप कहाँ पे आ रहा है, थर्ड पे आ रहा है। तो मुझे नंबरिंग कहाँ से करना, लेफ्ट से नंबरिंग करना पड़ेगा। तो ये आएगा नंबर 1 2 3 4, करेक्ट। तो सेकंड पे कीटोनिक ग्रुप आ रहा है और नंबर ऑफ कार्बन आइटम ऑफ 4, तो 4 कैन बी कॉल्ड एज व्हाट, 4 कैन बी कॉल्ड एज ब्यूटेन, ब्यूटेन ENE, बट कीटोनिक ग्रुप सेकंड पे आ रहा है तो 2ONE। सी अगेन हियर द टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम इन द चेन आर 4, इसीलिए क्या लिखा यहाँ पे, ब्यूटेन लिखा। कीटोनिक ग्रुप है इसलिए E शुड बी रिप्लेस्ड बाय व्हाट, ONE, बट कीटोनिक ग्रुप कहाँ पे है, सेकंड पे। ओके, ब्यूटेन 2। नेक्स्ट यहाँ पे देखो इन दिस स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5, तो यहाँ से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 पे कीटोन आ रहा है, 3 पे कीटोन आ रहा है, करेक्ट। 1 2 3 4 and 5, 5 carbon atom in the chain, 5 carbon atom can be called as a pentane, pentane, but because of ketonic group E should be replaced by what, ONE, but ketonic on which carbon atom, third, so 3ON। So what we have seen here, if I want to write down the IUPAC name of the ketone, then from the corresponding alkane, E should be replaced by what, ONE. So propane has become propanone, butane has become butanone, and pentane has become pentanone. E should be replaced by what, ON। Now we'll take some more example. Some more और little complicated example, मतलब इतने नॉर्मली हमें ये दो कंपाउंड ध्यान में रखना है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा कंपाउंड है, फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है, कौन सा, एसीटोन डाइमिथाइल कीटोन। नेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा, इथाइल मिथाइल कीटोन। ये हमारे लिए दो कंपाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिनका हम लोग प्रिपरेशन और रिएक्शन करेंगे, करेक्ट। दिस टू आर इंपॉर्टेंट, बाकी सारे आएंगे तो किसके लिए आएंगे, नोमेनक्लेचर के लिए आएंगे। I will take some more example. See here we are having CH3, CH, Br, C double bond O, CH2, CH2, CH3. This is structure. Now see here, अगर मैं यहाँ से काउंट करूंगा तो 1 2 3 4, कीटोन को 4 नंबर आ रहा है। ओके, या पहले हम इसका कॉमन नेम लिखते हैं, कॉमन नेम। कॉमन नेम लिखना है तो कहाँ से लिखोगे, यहाँ से नंबरिंग नहीं कर सकते बिकॉज कीटोन को नंबर आ रहा है 4 और Br को नंबर आ रहा है 2। लेकिन यहाँ पे और एक है, कीटोन और ब्रोमीन में, ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है। कीटोन और ब्रोमीन में हमारा कीटोन मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप अगर रहेगा तो फंक्शनल ग्रुप के इमीडिएट नेक्स्ट कार्बन एटम को क्या बोलोगे आप, अल्फा, और ये कार्बन एटम कौन सा होगा, बीटा। फंक्शनल ग्रुप का इमीडिएट नेक्स्ट कार्बन एटम इज अल्फा एंड नेक्स्ट टू दैट विल बी द बीटा। सिमिलरली ये अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप है तो ये रहेगा अल्फा, this will going to be the beta and this is going to be the gamma। मतलब फंक्शनल ग्रुप से लेफ्ट साइड में जाओगे तो अल्फा बीटा आएगा, फंक्शनल ग्रुप के राइट साइड में आओगे तो भी अल्फा बीटा आ जाएगा, करेक्ट। अभी यहाँ पे अल्फा, ये फंक्शनल ग्रुप अल्फा में क्या आ रहा है, Br आ रहा है, ब्रोमो, तो क्या लिखोगे, अल्फा, I'll just write common name here is what, अल्फा ब्रोमो, अल्फा ब्रोमो। ओके, अल्फा ब्रोमो एंड देन अल्फा ब्रोमो लिखने के बाद which group here, 1 2 carbon atom, 2 carbon atom is ethyl, 1 2 3 3 carbon atom is propyl and all 3 carbon atom in the continuation, तो n propyl। लेकिन यहाँ पे ग्रुप है इथाइल और यहाँ पे ग्रुप आ रहा है प्रोपाइल, तो E और P में पहले कौन आएगा, इथाइल। सो अल्फा ब्रोमो इथाइल
ethyl, N propyl, and then ketone is there, so it is called as a ketone. A complete common name. What is common name? The common name is अल्फा ब्रोमो, अल्फा ब्रोमो, अल्फा पे ब्रोमो आ रहा है, लेफ्ट साइड में कौन सा ग्रुप आ रहा है? इथाइल, राइट साइड में कौन सा ग्रुप आ रहा है? एन प्रोपाइल, और यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप है, तो ये हमारा क्या बनेगा? कीटोन। दिस इज विच नेम? कॉमन नेम। अगर मुझे इसका IUPAC नेम लिखना रहेगा, ये हमारा कॉमन नेम है, करेक्ट। IUPAC लिखना रहेगा तो देखो कैसे करूंगा, मैं नंबरिंग करूंगा। तो यहाँ पे अगर मैं इधर से नंबरिंग किया तो 1 2 3 4 पे कीटोन आएगा, 4 पे कीटोन आएगा और 5 पे BR आएगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ से नंबरिंग किया तो 2 पे BR और 3 पे कीटोन, मतलब इस साइड से कीटोन का नंबर आ रहा था 4 और लेफ्ट साइड से कीटोन का नंबर आ रहा है 3, तो मैं नंबरिंग लेफ्ट साइड से करूंगा। तो लेफ्ट साइड से नंबरिंग क्या आएगा? देखो मेरा यहाँ पे लेफ्ट साइड से नंबरिंग क्या आएगा? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। मतलब देखो जब कॉमन नेम लिखोगे तो कॉमन नेम के लिए क्या लिखना है? अल्फा बीटा गैमा लिखना है। लेकिन IUPAC लिखना नंबर लिखना, नंबर कंटिन्यूएशन, ऐसा नहीं कि ये कीटोन इसलिए यहाँ से नंबरिंग करनी, लॉन्गेस्ट चेन। तो यहाँ से मैंने अगर राइट से नंबरिंग करता तो कीटोन को नंबर 4 था, और लेफ्ट से नंबरिंग किया तो कीटोन को नंबर कौन सा आ रहा है? 3 आ रहा है, तो ये लोअर नंबर है 3। ओके, तो अभी 3 पे कीटोनिक ग्रुप है और 2 पे ब्रोमीन ग्रुप है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे? 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 2 पे ब्रोमो आ रहा है। देन हाउ मेनी कार्बन एटम? 1 2 3 4 5 6। तो 6 मतलब क्या लिखोगे? हेक्सेन, हेक्सेन, बट E should be replaced by what? ONE, बट कीटोन कहाँ पे? 3 पे, सो 3 ONE, करेक्ट। सो ये जो यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है ये हमारा कॉमन नेम है और ये हमारा IUPAC नेम है। तो फर्स्ट वन इज अ कॉमन नेम एंड सेकेंड वन इज अ IUPAC नेम। कॉमन नेम में क्या लिखना है? अल्फा बीटा गैमा लिखना है और IUPAC में नंबरिंग करना है। ओके, नेक्स्ट। ये जो देखो नॉर्मली हमारे लिए, मैंने क्या बोला तुम्हें, हमारे लिए 2 कंपाउंड इंपॉर्टेंट है। कौन से 2 कंपाउंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? एसीटोन, डाइमिथाइल कीटोन, और दूसरा हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है? इथाइल मिथाइल कीटोन। ये नॉर्मली इनका हमें रिएक्शन प्रिपरेशन करना है। बाकी के सारे जितने भी एग्जांपल्स है, दे आस्क फॉर द 1 मार्क क्वेश्चन, गिव द IUPAC नोमेनक्लेचर, उनके लिए सब आ जाएंगे। और दूसरा वाला एक एग्जांपल देखो एलिफेटिक का, यहाँ पे आएगा CH3 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, CH3, ये स्ट्रक्चर है। CH3 डबल बॉन्ड CH, ये। तो इसका पहले हम कॉमन नेम, अगर इसका कॉमन नेम कॉमन ही है, मतलब द कॉमन नेम इज मेसिटाइल ऑक्साइड, ये उसका कौन सा नेम है? कॉमन नेम। ये कॉमन नेम है मेसिटाइल ऑक्साइड, इसका IUPAC लिखना है। अब इसका IUPAC कैसे लिखेंगे? तो ये हमारा बनेगा लॉन्गेस्ट चेन, ये हमारा बनेगा लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5, करेक्ट। ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन है। ये नंबर होगा 1, ये नंबर 2 3 4 5। 2 पे आ रहा है कीटोनिक ग्रुप, 4 पे आ रहा है मिथाइल ग्रुप, और 3 और 4 के बीच में आ रहा है डबल बॉन्ड। तो पहले हमने यहाँ पे क्या लिखना है? 4 मिथाइल, तो आई जस्ट राइट डाउन हियर व्हाट? 4 मिथाइल। देन हाउ मेनी कार्बन एटम इन द चेन? 1 2 3 4 5। 5 मतलब क्या लिखोगे? पेंटेन। 5 मतलब क्या लिखोगे? पेंटेन। लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो क्या आएगा? पेंटीन, ENE आएगा। लेकिन 3 और 4 के बीच में तो क्या लिखोगे? 3 ENE, लेकिन कीटोनिक ग्रुप है। सेकेंड कार्बन पे तो E के लिए 2 ONE। आई रिपीट अगेन, सी टोटल यहाँ पे नंबरिंग राइट साइड से क्यों कर दिया? अगर राइट साइड से नंबरिंग करेंगे तो कीटोन को सेकेंड नंबर आ रहा है, अगर लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे तो कीटोन को 4th नंबर आता है। ये राइट साइड से नंबरिंग करना है। फिर 4 पे आ रहा है मिथाइल, तो क्या लिखा? 4 मिथाइल। हाउ मेनी कार्बन एटम इन द चेन? 1 2 3 4 5। 5 कार्बन एटम मतलब पेंटेन। लेकिन यहाँ पे 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, करेक्ट। डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखना है? ENE, थर्ड पे तो 3 ENE, लेकिन कीटोन के लिए
E should be replaced by what? ONE. तो ON, ये हमारा IUPAC. So this name is called as a IUPAC name. Okay. I'll take the next structure, that is CH3, C double bond O, CH2, CO, CH2, CH3. Okay, no common name. Directly we'll write which name? IUPAC name लिखना है इसका, IUPAC name. तो अभी देखो यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड O मतलब कीटोनिक ग्रुप, यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O मतलब कीटोनिक ग्रुप. तो नंबरिंग देखो, यहाँ से नंबरिंग करूंगा तो कितना नंबर आएगा? 1 2 3 4. 2 और 4 पे आ रहा है. 1 कीटोनिक ग्रुप इज ऑन सेकंड कार्बन एटम, 1 कीटोनिक ग्रुप इज ऑन 4 कार्बन एटम, तो 4 + 2 6. अगर मैं लेफ्ट साइड से नंबरिंग करूंगा तो लेफ्ट साइड से अगर नंबरिंग करेंगे तो सेकंड पे कीटोन आ रहा है, फोर्थ पे कीटोन आ रहा है, तो 2 + 4 6. लेकिन अगर मैं राइट साइड से नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3 3 4 5 5 5 + 3 8 आ रहा है. तो हमें ये भी देखना है कि लेफ्ट साइड से नंबरिंग किया था तो कीटोनिक ग्रुप और एट विच कार्बन एटम? सेकंड एंड फोर्थ. और राइट साइड से नंबरिंग किया तो कीटोनिक ग्रुप एट 3 एंड 5. तो इनका सम आ रहा है 8. हमें लोएस्ट सम देखना है, तो हमारा लोएस्ट सम 6 है. तो नंबरिंग कहां से करोगे? 1 2 3 4 5 6. ओके. सो टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम इन द चेन आर 6. तो 6 के लिए क्या लिखोगे? हेक्सेन. हेक्सेन. लेकिन यहाँ पे क्या है? हेक्सेन का ई रखना है. अभी हेक्सेन का ई रखना है क्योंकि यहाँ पे आएगा 2,4 और आएगा डाई. 2 कीटोनिक ग्रुप है इसलिए क्या है? डाई ONE. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? E और O के बीच में क्या आ रहा है? डाई. E और O के बीच में क्या आ रहा है? डाई आ रहा है, इसलिए E रखना है. तो हेक्सेन 2,4 डाई ONE. ONE मतलब कीटोन. हाउ मेनी कीटोनिक ग्रुप? 2. कहाँ पे है? सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पे. और O और E के बीच में डाई आ रहा है, इसलिए E रिप्लेस नहीं कर रहा. ये उसका IUPAC नेम हो गया. करेक्ट. नेक्स्ट CH3, C double bond O, CH2, CHO. CH3, C double bond O, CH2, CHO. Correct. Now in this structure क्या होगा? यहाँ पे अल्डिहाइड है और यहाँ पे कीटोन है. This group is aldehyde. This group is ketone. Aldehyde and ketone. तो यहाँ पे अगर मैं लेफ्ट साइड से नंबरिंग करूंगा, लेफ्ट साइड से, तो क्या होगा? ओके. लेकिन यहाँ पे कैसा? अल्डिहाइड को नंबर 1 देना है हमेशा. यहाँ पे अल्डिहाइड को नंबर, यहाँ पे नंबरिंग करोगे तो यहाँ पे नंबरिंग क्या होगा? 2 3 और 4. 2 और 4 पे आएगा. लेकिन यहाँ पे अल्डिहाइड करोगे, यहाँ से नंबरिंग कहाँ से करोगे आप? 1 2 3 4. ओके. नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं? अल्डिहाइड के लिए क्या करते हैं? अल्डिहाइड के लिए E should be replaced by what? AL. और कीटोन के लिए E should be replaced by ONE. लेकिन यहाँ पे दोनों फंक्शनल ग्रुप है, अल्डिहाइड भी आएगा और कीटोन भी आएगा, तो दोनों एंड में नहीं आ सकते. नॉर्मली क्या करते हैं? अल्केन में E should be replaced by AL in case of aldehyde. और कीटोन में क्या करते हैं? E should be replaced by what? ONE. लेकिन अगर लास्ट में, लेकिन अभी क्या करना पड़ेगा? हमें दोनों में से एक को पहले लिखना पड़ेगा और दूसरे को बाद में लिखना पड़ेगा. तो यहाँ पे रूल क्या है? अल्डिहाइड और कीटोन अगर रहेगा, अल्डिहाइड और कीटोन अगर रहेगा तो अल्डिहाइड को पहला प्रेफरेंस देना है और कीटोन को सेकंड प्रेफरेंस देना है. अगर हमारे पास अल्डिहाइड और कीटोन है तो अल्डिहाइड को पहला प्रेफरेंस, इसलिए नंबर 1 दिया, कीटोन को सेकंड. तो अल्डिहाइड कहाँ पे चला जाएगा? अल्डिहाइड चला जाएगा सफिक्स में और कीटोन चला जाएगा प्रीफिक्स में. करेक्ट. अल्डिहाइड चला जाएगा सफिक्स में और कीटोन चला जाएगा प्रीफिक्स में. तो कीटोन जब हमें देखो, कीटोन अगर हमें एंड में लिखना है तो क्या लिखोगे? ONE. लेकिन अभी मुझे कीटोन कहाँ पे लिखना है? प्रीफिक्स में. तो प्रीफिक्स में लिखना रहेगा तो कीटोन के लिए क्या लिखना है? ऑक्सो लिखना है. क्या लिखना है? ऑक्सो लिखना है. तो एक कीटोनिक ग्रुप कहाँ पे? थर्ड. तो आई जस्ट राइट डाउन द नेम एज व्हाट? 3
ऑक्सो, ऑक्सो मतलब कीटोनिक, मतलब कीटोनिक ग्रुप अगर एंड में आएगा तो क्या लिखना है, ONE लिखना है, लेकिन कीटोनिक ग्रुप अगर मुझे प्रीफिक्स में लिखना है तो क्या लिखोगे, ऑक्सो लिखोगे। ओके, तो 3 ऑक्सो मतलब 3 पे कीटोनिक ग्रुप है। एंड हाउ मेनी कार्बन एटम, 1 2 3 4, 4 मतलब क्या लिखोगे, 4 मतलब ब्यूटेन, और लास्ट में अल्डिहाइड आ रहा है तो अल्डिहाइड के लिए ई की जगह क्या लिखोगे, ए, तो ये हमारा IUPAC नेम। सो दिस इज आवर IUPAC नेम। करेक्ट, क्या देखो यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, तो दोनों को हम लोग एंड में नहीं लिख सकते, तो इसलिए हमने रूल है कि अल्डिहाइड और कीटोन रहेगा तो अल्डिहाइड का प्रायोरिटी हायर है, तो अल्डिहाइड चला जाएगा सफिक्स में, और कीटोन का प्रायोरिटी लोअर है तो वो चला जाएगा प्रीफिक्स में। लेकिन अगर मुझे कीटोन को प्रीफिक्स में लिखना है तो कीटोन के नाम के लिए क्या लिखना है, ऑक्सो। ओके, तो यहाँ पे आएगा 3 पे कीटोनिक ग्रुप है तो 3 ऑक्सो, number of carbon atom in the chain are 4, so 4 can be called as what, butane, and because of aldehyde the E should be replaced by what, A. Okay, some more example. Okay, यहाँ पे भी फिनाइल रिंग है, यहाँ पे भी फिनाइल रिंग है, तो इसका हमें दोनों नाम लिखना पड़ेगा। I'll write common name, देखो ये benzene ring attached to something, benzene ring attached to something, so we can just write down as what, diphenyl ketone, ये हमारा कीटोनिक ग्रुप है। बेंजीन रिंग अटैच करेगा तो क्या बोलते हैं हम लोग, फिनाइल, तो ये फिनाइल ये फिनाइल, तो क्या बना, डाइफिनाइल, और दोनों के बीच में कौन सा ग्रुप आ रहा है, C डबल बॉन्ड हो तो ये बनेगा कीटोन, डाइफिनाइल कीटोन, और इसका IUPAC नेम है बेंजीन रिंग अटैच टू कीटोन, कैन बी कॉल्ड एज व्हाट, बेंजो फिनोन, ये फिनोन है। मतलब अगर हमारा बेंजीन रिंग कीटोनिक ग्रुप को अटैच करेगा तो उसे क्या लिखना है, फिनोन लिखना है। बेंजीन रिंग अगर कीटोनिक को अटैच करे तो क्या लिखना है, फिनोन लिखना है, और ये फिनोन और एक बेंजीन को अटैच है, करेक्ट, तो ये फिनोन एक पार्ट हो गया और बेंजो दूसरा पार्ट है। बेंजीन रिंग ये हमारा पूरा ग्रुप, ये जो हमारा पूरा ग्रुप है, दिस बेंजीन रिंग विथ C डबल बॉन्ड O, दिस इज कॉल्ड एज अ फिनोन, और फिनोन और एक बेंजीन को अटैच है, बेंजोफिनोन। So diphenyl ketone is हमारा कॉमन नेम, बेंजोफिनोन इज IUPAC नेम। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों कॉमन, बेंजोफिनोन कॉमन नेम भी है और IUPAC नेम भी है। ओके, बेंजोफिनोन मतलब अगर मुझे कॉमन नेम लिखना रहेगा तो ये दोनों कॉमन नेम आएंगे, दोनों कॉमन नेम क्या आएंगे, डाइमिथाइल कीटोन और बेंजोफिनोन। और अगर मुझे इसका IUPAC लिखना है, अगर मुझे तो IUPAC आई कैन जस्ट राइट डाउन ओनली एज व्हाट, बेंजो phenol, मतलब benzophenone is accepted as a common name as well as it is accepted as a IUPAC, benzophenone. Okay, I'll take 2 more example and then I'll stop. First we'll write the common name. Common name. See here, common name. This group is called as a methyl. Benzene ring attached to C double bond O is called as a phenyl. So common name will be methyl phenyl ketone. Methyl, because this group is methyl, this group is phenyl ketone, or we know that CH3CO, this group is called as acetyl group, and this group is called as the phenone group. So name can be also written as what, acetophenone. See here, CH3CO is called as aceto. Benzene ring with CO can be called as a phenone. So this compound can be also called as what, acetophenone. So these are the common name. And अगर मुझे IUPAC लिखना रहेगा तो IUPAC में acetophenone ही आएगा, correct. So what I can say here,
acetophenone is accepted as a common name as well as is accepted as a IUPAC name. And here double bond O, Cl, and here CH3. Okay, now in this case यहाँ पे देखो एक कीटोनिक ग्रुप है, यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O कीटोनिक ग्रुप है, बाद में दूसरा कौन सा ग्रुप है, Cl ग्रुप है और CH3, तो इसका नंबर चला जाएगा 1, इसे नंबर चला जाएगा 2 और इसे नंबर चला जाएगा 3। तो ये नंबर 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा और ये 4, 5, 6, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या देखा हमने, कीटोन और हैलाइड में पहला प्रेफरेंस कीटोन को देना है, तो ये हमारा कीटोन आ गया नंबर 1 पे और ये 2 और 3। तो ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो मेन फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे चला जाता है, सफिक्स में। ये दूसरा फंक्शनल ग्रुप है, तो ये कहाँ पे चला जाएगा, हमारे प्रीफिक्स में, मतलब स्टार्टिंग में चला जाएगा। और ये तो ब्रांच ही है, तो ये भी चला जाएगा प्रीफिक्स में। तो देखो तीन चीजें, कीटोनिक ग्रुप है, Cl है और मिथाइल है। तो कीटोनिक ग्रुप हमारा मेन है, वो कहाँ पे आएगा, सफिक्स में। और हैलाइड और मिथाइल दोनों कहाँ पे चले जाएंगे, प्रीफिक्स में। अभी Cl का आएगा क्लोरो, C, और मिथाइल का आएगा M। क्लोरो और M में पहला कौन आएगा, क्लोरो आएगा। तो नेम क्या लिखोगे यहाँ पे, 2 क्लोरो 4 मिथाइल, 2 क्लोरो 4 मिथाइल, करेक्ट, 2 क्लोरो 4 मिथाइल। और फिर क्या बचा, फिर साइक्लो, साइक्लिक रिंग है इसलिए क्या लिखोगे, साइक्लो। 6 कार्बन एटम है इसलिए क्या लिखोगे, हेक्सेन, हेक्सेन। और कीटोन है तो लास्ट ई शुड बी रिप्लेस्ड बाय व्हाट, ONE, सो हेक्सेन। देखो सेकेंड पे क्लोरीन तो 2 क्लोरो, 4 पे मिथाइल तो 4 मिथाइल। साइक्लिक रिंग है इसलिए क्या लिखोगे, साइक्लो। 6 कार्बन एटम इन द रिंग है तो क्या लिखोगे, हेक्सेन। और कीटोन के लिए लास्ट ई शुड बी रिप्लेस्ड बाय व्हाट, ONE। ओके, तो यहाँ पे एक जस्ट टेबल बनाता हूं मैं। अगर हमारे पास अल्डिहाइड है और कीटोन है, इसका एग्जाम, अल्डिहाइड और कीटोन है, इनका नेम अगर मुझे सफिक्स में लिखना है, मतलब एंड में लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा, Al, और इसके लिए क्या लिखूंगा, ON। लेकिन अगर मुझे अल्डिहाइड और कीटोन प्रीफिक्स में लिखना पड़ा, प्रीफिक्स में, तो कीटोन के लिए देखा हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऑक्सो लिख सकते हैं। देखो अगर मेरे पास अल्डिहाइड है तो एंड में क्या आएगा, Al आएगा। अगर मेरे पास कीटोन है तो एंड में क्या आएगा, ON ही आएगा। लेकिन अगर कीटोन है और मुझे प्रीफिक्स में लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा, ऑक्सो, और इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा फॉर्माइल। इस टाइप का एग्जाम्पल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और ध्यान में रखना, अगर मेरे पास दो फंक्शनल ग्रुप है, अल्डिहाइड एंड कीटोन, और अगर मुझे सफिक्स में लिखना है तो अल्डिहाइड के लिए क्या लिखोगे, Al लिखोगे। लेकिन अल्डिहाइड को अगर मुझे प्रीफिक्स में लिखना है तो क्या लिखोगे, फॉर्माइल लिखोगे। और कीटोन को अगर मुझे सफिक्स मतलब एंड में लिखना है तो क्या लिखोगे, ONE लिखोगे। और अगर मुझे प्रीफिक्स में लिखना है तो क्या लिखोगे, ऑक्सो लिखोगे। इसके बारे में और एग्जांपल विल टेक इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, I'll stop it over here, we'll continue tomorrow.